آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات ترکیہ کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ جنوبی ایشیا میں حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ اپنی مستقل حمایت کے ذریعے صدر اردوان نے ایک بار پھر پاکستانی عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ ترکیہ نے مشکل گھڑی میں پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات کی تاریخ میں ایک نئے اور شاندار باب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کی بہادر مسلح افواج کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بنیاد المرصود کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کے مسموم عزائم کو ناکامی سے دوچار کیا، یہ کہا گیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ آج پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پہلا راؤنڈ آج ہوا ہے۔ اسی سے متعلق ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڈائش نے ہمیں جوائن کیا۔ عدیل، کیا مزید انفارمیشن مل سکی؟ کیا ایجنڈا تھا؟ کیا گفتگو ہوئی؟ جی، ایک ہی ایجنڈا تھا، جنگ بندی جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس حوالے سے جو 48 گھنٹے کی انیشیل یعنی 10 مئی کو جو جنگ بندی امریکہ کی ثالثی کے بعد ہوئی تھی اس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ تو آج کا یہ رابطہ بڑا کرٹیکل رابطہ تھا، اور اس میں بات کی گئی اور اتفاق کیا گیا کہ جنگ بندی جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو جنگ بندی جو ہے اس میں جو لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری اور انٹرنیشنل بارڈر کا جو معاملہ ہے وہ زیر غور آیا، اور اس میں بہرحال جو چیزیں ابھی تک طے پائی ہیں اس میں جو کشیدہ صورتحال تھی دونوں ملکوں کے درمیان، اس میں اب ایک اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس کے تسلسل کو آگے لے کے جانے پہ اتفاق ہوا ہے، اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال جو ہے اگرچہ اس پہ آنے والے دنوں میں مزید بات ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن جو امریکہ نے اس میں کردار ادا کیا اور اس کو فل اینڈ امیجیٹ سیز فائر کہا، اس پہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اب اتفاق رائے پایا گیا ہے۔ اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ سفارتی ٹیموں نے بیٹھنا ہے، نہ صرف یہ بلکہ جو ڈی جی ایم اوز کی سطح پہ رابطے ہیں ان کو بھی فریکوینٹلی وہ منعقد کیے جائیں گے۔ لیکن اب جو پاکستان کی جو ٹیم ہے دفتر خارجہ کی اور بھارت کی جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کی ٹیم ہے، یا دونوں ممالک کے جو این ایس ایز ہیں، انہوں نے اب جو 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس میں کشمیر کا معاملہ ہے، جس میں جو دہشت گردی کا معاملہ ہے، جس میں سندھ طاس کا معاہدے کا معاملہ ہے، تو اس پہ اگلے مرحلے میں بات کی جانی ہے۔ لیکن اس میں جو پہلا جو پازیٹیو جیسچر جو دونوں جانب سے دیا جانا تھا، بالآخر وہ جو جنگ ہے اس کا خاتمہ ہوا۔ دونوں ملکوں کی جو ایئر سپیس ہے وہ کھل گئی، اور اس کے بعد جو ایویشن کا جو انڈسٹری ہے اس نے اپنا امور جو ہیں وہ پہلے جیسے انجام دینے شروع کر دیے۔ یہ ایک دونوں ملکوں کی جانب سے یہ ایک انڈیکیشن بھی ہے کہ معاملات جو ہیں یہ نارمل ہونے کی جانب ضرور جا رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ بھی بڑا کرٹیکل ہے۔ ذیشان یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارن افیئرز کو کور کرتے ہیں۔ ذیشان، یہ بتائیے اگلا مرحلہ کس وینیو پہ ہوگا اور اگلے مرحلے میں ایجنڈے پہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں عدیل صاحب، یہ جو انیشیل معاملات تھے وہ تو طے ہو گئے ہیں، لیکن اب وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا روزانہ اس طرح کے معاملات تو نہیں ہو سکتے کہ کشیدگی ہوگی؟ اس کے لیے اب ایک نیوٹرل وینیو پر پاکستان اور بھارت بیٹھے گا، اور وہ نیوٹرل وینیو جو ہمارے سورسز ہمیں بتا رہے ہیں وہ موسٹ پروبیبلی کوئی گلف کنٹری ہو سکتی ہے۔ آپ نے ایجنڈے کی بات کی، تو ایجنڈے پر مینلی جو آئٹمز ہیں وہ تو ہے سنتاس معاہدہ کہ اسے ایک طرفہ طور پر معطل کیا گیا ہے، آلتو کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی بڑی فتح ہوئی ہے وہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ دوبارہ دنیا میں منظر عام پر آیا ہے اور انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہوا ہے، تو اس پہ بات چیت کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ سورسز ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بات بھی طے کی جائے گی پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کی کشمیر کا معاملہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا، اس دنیا کی نظر میں آیا، اور اس میں پاکستان کا رسپانس ایسا تھا کہ بھارت مجبور ہو گیا، امریکہ نے بھی اس کو اس نہج پہ لانے میں کردار ادا کیا۔ تو اب کشمیر دہشت گردی اور سنتاس جو معاہدہ ہے وہ اگلے مرحلے کے اوپر اس پر ڈسکشن ہوگی۔ بہت شکریہ عدیل وڑائچ اور ذیشان یوسف سے آپ نے ہمیں تفصیلات فراہم کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा भी किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक को तहम्मुल का पैगाम दिया। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन की कोशिशों का अयादा किया। इसहाक डार का कहना है कि पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक अपना दिफाई हक़ इस्तेमाल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का ये टेलीफोनिक रब्ता हुआ। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक को तहम्मुल का पैगाम दिया। इसहाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन की कोशिशों का अयादा किया। साबिक भारतीय जनरल चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के गर्विदा निकले। भारतीय जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान के भरपूर रद्दअमल पर दुनिया भर में खराज तहसीन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PR शंकर ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चीनी जंगी साजो सामान को चीन से भी बेहतर इस्तेमाल किया। दिफाई माहिरीन कहते हैं, साबिक भारतीय जनरल की बातें साबित करती हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज प्रोफेशनल हैं। साबिक भारतीय जनरल चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के गर्विदा निकले। भारतीय जारहियत पर अफवाज पाकिस्तान के भरपूर रद्दअमल पर दुनिया भर में खराज तहसीन। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड PR शंकर ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चीनी जंगी साजो सामान को चीन से भी बेहतर इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा, ताहम पाक भारत जंग बंदी एक ऐसा इक़दाम है, इसकी तायीद करता हूँ। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ और DG ISPR ने वाजे किया था कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कौम से किए गए वादे की तकमील है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। तारीख ने साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. Alhamdulillah, we have the will, capacity and capability to protect our sovereignty and territorial integrity, and we are all well aware of the ways and means to do it. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। Now you just wait for our response. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शोहदा की वजह से कामयाबी मिली है। अब भारत किसी भी किस्म का एडवेंचर करने के लिए 100 बार सोचेगा। अब जंग सिर्फ 3 हिस्सों में नहीं होती, अब जंग 5 हिस्सों में होती है। अब डिप्लोमेटिक और मीडिया के महाज पर भी जंग होती है। हमने दुश्मन को 5 हिस्सों में हराया है। हमारी किसी किस्म की दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं है। डिजिटल दहशतगर्दों के पाँव भी अब उखड़ रहे हैं। भारत को ड्रामा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सबको पता है इनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है। PSL के बकिया मैचेस कराने का फैसला रात तक कर लेंगे। ये जो भी कामयाबी मिली इन शहीदों की वजह से मिली। इंडिया एक दफ़ा 100 दफ़ा सोचेगा दोबारा किसी तरह का भी एडवेंचर करने के लिए। जंग अब सिर्फ 3 हिस्सों में नहीं होती। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये 3 नहीं रह गए। अब जंग 5 हिस्सों में होती है। 3 ये
डिप्लोमेटिक साइड एक है, चौथी और पांचवी मीडिया। और अल्लाह ताला का शुक्र है हमने उनको पांचों जगहों पे उनके हराया है। हमारा किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगले दिनों में आप खुद देखेंगे, ऑलरेडी उनके पाँव खड़े हैं, लेकिन अगले दिनों में आप और देखेंगे। इस दफ़ा ड्रामा बनाया, ड्रामा बनाने में तो उनको कोई नहीं रोको। आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। PSL के बारे में जो भी इंशाल्लाह आज शाम तक, रात तक फैसला कर लेंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत को 6-0 से शिकस्त दी। पूरी कौम मुत्तहिद रही। अफवाज को सलाम पेश करता हूँ। कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। हम नहीं चाहते कि भारत के साथ हमेशा हालत जंग में रहें। अगर कोई जंग मुसल्लत करे तो दिफा करना जानते हैं। हमें जिम्मेदार मुल्क के तौर पर अपने बाहमी मसाइल बातचीत से हल करने चाहिए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को 6-0 से शिकस्त दी है। पूरी कौम यूनाइट रही है। मैं समझता हूँ ये कौम का दिन है और कौम ने इस दिन को तशक्कुर के तौर पे मनाया है। मैं अपने अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कौम का सर फख्र से बुलंद किया, इंडिया का गुरूर हाक में मिलाया और उन्होंने एक जिंदा और खुद मुख्तार, आज़ाद और मजबूत कौम का एक अमली मुजाहरा किया है। बिगनिंग ऐसा होना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क के तौर पे हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। इंडिया हमारा नेबर है, हम नहीं चाहेंगे अपने नेबरों के साथ हमेशा स्टेट ऑफ वार में रहे। कोई हम पे जंग मुसल्लत करे तो दिफा भी जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट इजलास के आगाज़ में शुरका को ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया। अब दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम बढ़ा है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके नाकाबिल तस्खीर बनाया। पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फ्राहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी। 21 डिस्ट्रिक्ट और 15 तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में भी थैलेसीमिया सेंटर्स बनेंगे। हेल्थ के लिए मौसर तरीन सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज करने का असूली फैसला। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का अख्ताम तारीखी सतह से हुआ। 100 इंडेक्स पहली बार 10,123 पॉइंट्स बढ़कर 1,17,297 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 461 कंपनीज में से 404 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा हुआ। 26 कंपनीज के शेयर्स में कमी हुई। सोने की कीमत में 10,400 रुपए की बड़ी कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर रुपए के मुकाबले में 14 पैसे कम हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल बरोज मंगल सऊदी अरब का बतौर सदर पहला गैर मुल्की दौरा शुरू करेंगे। इस अहम दौरे के दौरान वो सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे और खलीज ताउन कौंसिल के खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरे का बुनियादी मकसद सऊदी अरब के साथ वसी सरमायाकारी मुआहदे को हतमी शक्ल देना है, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। सदर ट्रंप इस दौरे के बाद 15 मई को कतर और 16 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। इन ममालिक के साथ भी अमरीकी हुकाम सरमायाकारी और दिफाई ताउन पर बातचीत करेंगे। अहम मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। अमरीकी दफ्तर खारजा ने इन दौरों को खित्ते में इक्तिसादी और सिक्योरिटी शराकत दारी का नया बाब करार दिया है। अमेरिका के दरमियान तजारती मुज़ाकरात में अहम पेशरफ हुई है, जबकि दोनों मालिक ने बाहमी टैरिफ में बड़ी कमी पर इत्तेफाक किया है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, चीन के साथ मुज़ाकरात तामीरी रहे। दोनों मालिक मसनूआत पर टैरिफ में 115% तक कमी करेंगे। मुतादिर टैरिफ 90 दिन के लिए वापस लेने का फैसला भी किया गया है। स्कॉट ने मज़ीद कहा कि दोनों मालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि तजारत में तवाज़ुन लाया जाएगा। हम सिर्फ तजारत नहीं चाहते बल्कि एक मुतवाज़न तजारत के हामी हैं। अमरीका और चीन ने मसनूआत पर टैरिफ का इतलाक रोक दिया।